In the last 10 to 15 days, I have practiced it well from the OIR given to us from the SSB Short Academy, and I have done it well during the my first day in SSB. And this was my first attempt for the SSB for the ND 152nd course. Hello, Ashutosh. Good evening. Good evening, ma'am. Ashutosh, I am Preeti from Short Academy, and today I'm here to take a small interview of yours on your experience, mostly on your SSB. So, my first question will be like, I want to know about your SSB, your name, your introduction, and where have you been to SSB? Okay, ma'am. First of all, good evening, ma'am. My name is Ashutosh Upreti, and I belong to a small town known as Haldwani in Uttarakhand, district Nainital. And I have got for the SSB from the board of 14 SSB Prayagraj and been recommended from it on 10th of January 2024. Now, talking about my experience in SSB, first of all, I will start from OIR. Basically, the OIR is the test series, is a kind of booklet given to you testing your mentally assessment about your analytical and other mathematical calculations which you can do usually in short period of time. मतलब आप कैसे उसको छोटे टाइम में क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, और क्या आप प्रेशराइज सिचुएशन में अगर आपको टाइम दिया जाता है क्या उसमें आप कर पाते हैं. तो वो ओ आई आर बेसिकली वही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है इसको कर लेते हैं आसानी से. अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर सकते हैं आसानी से. बिकॉज इन दी लास्ट 10 to 15 days I have practiced it well from the OIR given to us from the SSB Short Academy, and I have done it well during the my first day in SSB, and this was my first attempt for the SSB for the ND 152nd course. Coming to the PPDT, what PPDT actually is. Most of the candidates have rumors that पीपीडीटी, अरे यार पीपीडीटी हेजी आती है, उसमें नरेशन अच्छा देखा जाता है, उसमें आपकी जीडी अच्छी देखी जाती है. बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस विच यू आर गिविंग. सो जो मेरी पीपीडीटी पिक्चर आई थी उसमें बैकग्राउंड कुछ नहीं था. नो बैकग्राउंड, just two people are standing there, one boy, one female friend, and in the boy hand there was a kind of booklet or book which usually we are holding in our hands in our school days or in our college days, and the boy was hanging out a bag. So I have made a story on the theme discussion after examination. Just simple theme, not very high tech. And some of the students have also made the theme basically that the IVF report or like that, which means that you are thinking of a very high possibility which cannot be possible, because if you are seeing the age group, the age criteria which is given in the picture, it does not match with it. So I think the things which should be avoided during this time is a kind of giving high tech idea. बस आपको सिंपल रहना है वहां पे, जैसे आप एक्चुअली में हो, आपको वही दिखाना है. आपको ज्यादा Correct. कुछ प्री कंसीव्ड बनने की Hmm. जरूरत ही नहीं है. आप जितना Hmm. सिंपल रहोगे, जितना चिल रहोगे, Hmm. उतनी अच्छी तरह आप फर्स्ट डे भी Hmm. निकालोगे और फिफ्थ डे रिकमेंड भी होगे. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है. और उसके बाद फिर मैम हमारा ग्रुप डिवाइड करा गया. तो जो Hmm. मेरा ग्रुप बना था वो 15 कैंडिडेट्स का बना था. Hmm. सो मेरा चेस नंबर स्क्रीन इन के टाइम पे चेस नंबर मेरा 9 था. फिर Okay. उसके बाद स्क्रीन इन के बाद मेरा चेस नंबर 15 हो गया था. तो Hmm. जिस टाइम हमारा ग्रुप बना, तो देन आई वाज सिटिंग इन द मिडिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन. Hmm. Then that psych sir asked that you can start the Hmm. narration one by one without stopping. So we have started the narration from chess number 1 till chess number Hmm. 15. And there are different kind of students, मीन्स जो बीच में अटक के भी बोलते हैं, जो बीच में, लेकिन वो अच्छा बोलते हैं कि हाँ आपको समझ आ रहा है, वो अपने एक्सप्रेशन आपको दिखा रहे हैं. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा नरेशन एक बार में एक लाइन लाइन टू लाइन बढ़िया बोल दोगे. ऐसा जरूरी नहीं है. और कोई अटकता है Hmm. उसमें वो तो नॉर्मली चीज है, क्योंकि सबसे पहला ग्रुप हमारा था तो हमें ज्यादा टाइम मिला नहीं था
कि हम माइंड में हम्म उस पिक्चर को रिवाइज कर पाए जो हमने हम्म लिखा है। तो हम्म ये हर किसी के साथ नहीं होता है, तो मैम वहाँ पे वो चीज़ जो सामने असेसर बैठे हैं वो भी समझते हैं कि हम्म बच्चा है, तो इतना तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि बीच में अगर फंबल कर गया, तो ये तो नॉर्मल हम्म चीज़ है। तो बच्चे सोचते हैं कि यार मेरा नरेशन अच्छा नहीं गया, इसकी वजह से मैं आउट हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में ऐसे थे जिनका नरेशन अच्छा नहीं गया था, बहुत ज़्यादा फंबल करे थे, लेकिन फिर हम्म भी वो स्क्रीन इन हुए हैं। तो हम्म मैम यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और बाकी क्राइटेरिया जो होता है वो काम आता है, अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने नोटिस करा। तो जब हमारा नरेशन हुआ, तो नरेशन तो मैम ऑल वेंट गुड, मेरा भी बढ़िया हम्म ही गया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई डू नॉट फंबल देयर इन द टाइम हम्म ऑफ नरेशन। उसके बाद मैम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि हम्म टाइम कम होता है पीपीडीटी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप देखने होते हैं, तो देन द एसेसर्स हैव स्टार्टेड द ग्रुप डिस्कशन। तो मैम अब सबको होती है कि टाइम कम है, सबको पता है टाइम कम है, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ पड़ते हैं कि बस हम्म मैं अपने पॉइंट रख दूं, मैं अपने पॉइंट रख दूं, कैसे भी करके, कैसे भी करके। तो ट्रू कहीं ना कहीं आपके अंदर से एग्रेशन बाहर आता है, हम्म जो मैं समझ गया था कि हाँ, एग्रेशन आएगा बाहर। क्योंकि अगर दो बंदे, अगर आप नॉर्मली अपनी सिटी में भी देखोगे कहीं झगड़ा होता है और कोई आपके बीच में बोल दे, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आपका दिमाग खराब होने लगता है और आप उल्टा कुछ बोल देते हो गुस्से में आके। तो हम्म वही चीज एसएसबी जीडी में भी होती है। हम्म तो आप जितना करेक्ट काम रहोगे अंदर से, उतना आपका जीडी बढ़िया जाएगा, जो कि सर ने भी करेक्ट बताया था हमें। और हम्म ये बहुत अच्छी चीज है, कामनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक, जिसके लिए मैंने मेडिटेशन शुरू करा था, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत हम्म नहीं हुई। तो मैं काम रहा पूरे जीडी में। और फिर उसके बाद जीडी जब शुरू हुआ, तो सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे पिक्चर के ऊपर। लेकिन शोर इतना ज्यादा हो गया था कि फिर हमें दो ग्रुप में बांटना पड़ गया, फर्स्ट टू 8 एंड देन 9 टू 15, लाइक दिस हम्म हमें सेपरेट करा गया। उसके बाद दो अलग अलग ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन हुआ। तो फर्स्ट ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे थे जो ओवर डोमिनेट कर रहे थे, जो किसी और को बोलने नहीं दे रहे थे, और हमारे ग्रुप में भी थे, वो सभी ग्रुप में होते हैं। तो वो तो मैम हम्म सीधे आउट हो जाते हैं, क्योंकि कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है ग्रुप में। क्योंकि अगर हम्म जब तक कॉपरेशन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक आप टीम में आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि आपको अपना तो देखना है, लेकिन वो भी तो आपके दोस्त हैं, एक तरीके से देखो तो वो भी कहीं ना हम्म कहीं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ही आए हैं। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आप अच्छा कर पाओगे ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि तभी आप उनके पॉइंट भी लोगे, और तभी आप कहीं एक कॉमन स्टोरी पे पहुंचोगे। जब हमारा ग्रुप हम्म डिस्कशन हुआ, तो हम 1 मिनट तक का, हमें ज्यादा टाइम नहीं, 1 to 1.5 मिनट्स दिए गए थे, और हमने हम्म उसमें अपनी स्टोरी कंक्लूड भी कर दी थी। मतलब हम एटलीस्ट स्टोरी के टॉपिक तक पहुंच गए थे कि हाँ, ये टॉपिक डिसाइड हो गया, पूरी स्टोरी तो नहीं, लेकिन टॉपिक हमारा डिसाइड हो गया था। और आउट ऑफ 15 देयर वर 9 कैंडिडेट्स दैट गॉट स्क्रीन्ड इन ऑन द फर्स्ट डे। उसके बाद ओके मैम रेस्ट ऑल डॉक्यूमेंटेशन चली फर्स्ट डे की। हम्म उसके बाद देन वी वर अलॉटेड दी बैरिक्स फॉर और रेस्ट हम्म ऑफ द डेज देयर। एंड देन वी मेड फ्रेंडशिप्स विद ईच अदर, ज्यादा गहरी हम्म दोस्ती हो गई थी फिर, क्योंकि अब तो टाइम ही टाइम है। फिर उसके बाद रूम हम्म में गए, फिर मैम फर्स्ट डे ऐसे ही निकला। फर्स्ट डे हमारा पूरा दोस्ती में, हंसी मजाक में, और कुछ बच्चे जो पढ़ रहे थे वो पढ़ने में बिजी थे। तो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग देम बेसिकली, बिकॉज अब पढ़ने वाले को किसने रोका है, वो तो मैम पढ़े। what do you think that as a fresher was okay, maybe you have not experienced the other times, maybe so your first ssb, so have you taken anywhere coaching, मतलब कहीं पे like कुछ like guidance लिया, so what will be your advice कि being a fresher should you go for coaching or not? मैम मैंने गाइडेंस लिया था, एक्चुअली आई एम ऑल्सो एनसीसी कैडेट। क्योंकि आपको Okay. भी पता है, क्योंकि आपके साथ मेरा हम्म पहले भी इंटरेक्शन हो चुका है, तो मैंने हम्म आपको भी बताया था। तो मैंने गाइडेंस ली थी, मेरे एक्स कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल डीके रावल सर, here okay in my hometown only, Haldwani. So I have हम्म taken guidance from him, and then हम्म after him, I got to the SSB Short Academy, the online batch, हम्म and also taken the online interview from हम्म Major General Vipin Bhakuni sir, which helped me a okay lot. So okay this thing, मतलब मैं अपनी ओर से एडवाइस करूंगा कि हाँ, एक होती है कि कोचिंग और एक होती है गाइडेंस, तो दोनों हम्म में मैम डिफरेंस है। बिकॉज कोचिंग के थ्रू correct आप क्या करते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम्म एसएसबी आपसे ये नहीं मांग रही है। क्योंकि अगर आप हम्म जिस समय आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करोगे, वहां पे वो ऑटोमेटिकली प्री कंसीव चीजें आपके सामने दिखेंगी, वो चीजें मैच ही नहीं होंगी। क्योंकि हम्म एसएसबी हमें खुद बोलती है, जब मैं गया था वहां पे,
तो एसएसबी बोर्ड के एसएसबी इलाहाबाद जो बड़ा सा वहाँ पे एंट्रेंस है, वहीं पे लिखा है मनसा, कर्मणा हम्म और वाचना। तो ये तीन चीजें ही आपको हम्म बता देती हैं कि एसएसबी के अंदर आप इन कैसे हो सकते हो। तो मैम इससे करेक्ट। ज्यादा तो जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग बहुत गलत चीज है, लेकिन अगर आप गाइडेंस ले रहे हो तो गाइडेंस बहुत सही चीज है। क्योंकि एब्सोल्युटली। हम्म गाइडेंस के थ्रू आप ये कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि ओएलक्यूज हम्म हर किसी में होते हैं बेसिकली, क्योंकि अब हम्म हर कोई ह्यूमन बीइंग ही तो है, लेकिन मैम हम्म वो ओएलक्यूज निकल के नहीं आ पाते हैं। तो बेसिकली हमें एसएसबी में ओएलक्यूज निकालने हैं, तो हम गाइडेंस लेंगे तो हम अपने ओएलक्यूज को इनहेंस कर सकते हैं, जिससे वो सामने हम्म दिखें और हम एक बेटर डिसिप्लिन पर्सन बन सकते हैं, जो हमारे आगे फर्दर लाइफ में भी हमें हेल्प करेगा। हम्म तो हम्म अकॉर्डिंग टू मी गाइडेंस इज मोस्ट हम्म इंपॉर्टेंट थिंग देन कोचिंग। So guidance may like what all have you actually ingrained? Like is it the tricks or the way you narrate or every details of your screened in? Because I believe the fact that before going to SSB screened in होना बहुत जरूरी है, because screened यस in मैम। के बिना तो बाकी तुम्हारा GTO interview तो it will be a waste of your say this practice and whatever. So screened in होना बहुत जरूरी है. तो what other tricks have you used like in getting screened in? Okay, ma'am. Talking about the tricks, I have not used any kind of tricks. Only the practice. Means Hmm. I have practiced a picture, many pictures a lot. Means मैंने रोज अपनी YouTube के थ्रू और Hmm. व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू, व्हाट्सएप जो मेरे दोस्तों फ्रेंड्स का चैनल था उसके थ्रू हम क्या करते थे, एक दूसरे को पीपीडीटी इमेजेस भेजते थे। और Hmm. एसएसबी शॉर्ट शॉर्ट एकेडमी का जो बैच बना था, Hmm. उसमें भी हमने क्या करा था, अलग से ग्रुप बना दिया था, जिसमें हम गूगल मीट में भी एक दूसरे के साथ नरेशन वगैरह करते थे, जीडीपी करते थे गूगल मीट पे ही। और एक कोई बच्चा हर रोज एक एक बच्चा रैंडमली कोई भी एक पीपीटी में शेयर करता था। तो मैम प्रैक्टिस इज दी ओनली थिंग कि आप अपना जो स्क्रीनिंग है उसको बढ़ा सकते हो। और बाकी लोगों के थ्रू, मींस अगर आप घर में जैसे फॉर एग्जांपल आपके मदर है, आपके फादर है, Hmm. आपके भाई हैं, तो मेरा भाई था, मेरी मदर थी, क्योंकि फादर तो मेरे आउट ऑफ टाउन रहते हैं फॉर जॉब। तो Hmm. मैंने इन दोनों से मदद ली स्क्रीन इन के टाइम पे काफी, और इन्होंने मेरी हेल्प भी Hmm. करी। बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्क्रीन इन आई हैव दी पिक्चर्स विच आई एम प्रैक्टिसिंग, आई showed to them and asked them about various kinds of themes that they can also think। मतलब Hmm. मैं उनसे भी पूछता Hmm. था कि आपके अकॉर्डिंग इसमें आप क्या सोच रहे हो, आप मुझे ये भी बताओ। क्योंकि मैंने तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक Hmm. पिक्चर से मैं 5 स्टोरीज लिख रहा हूँ, तो कुछ और आइडिया मेरी मदर के दिमाग में आ सकता है, कुछ और आइडिया मेरे भाई के दिमाग में आ सकता है। तो वो ये Hmm. चीज मुझे मेरे माइंड को ब्रॉडन करने में इसने मुझे हेल्प करी, और जिसकी वजह से बिल्कुल। मुझे अलॉट ऑफ थीम मिल गई थी एक ही पिक्चर से। हम्म। तो मैंने ऐसी काफी सारी पिक्चर में डेली प्रैक्टिस करता था, तो जिससे मुझे क्या होता था कि काफी सारी थीम्स मिल जाती थी। तो अगर मुझे मेरे सामने कोई भी पिक्चर आए तो बेसिकली मैं बना देता था उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बनाना होता है, और एक जो चीज होती है कि हाँ ये आपकी लाइफ से रिलेट कर रही है, एक वो करना होता है। तो मैम लाइफ से रिलेट करना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें आपने कहीं ना कहीं, जो पिक्चर हम्म। आएगी वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ करेक्ट। से रिलेट होगी। वो हर किसी की लाइफ से रिलेट हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम्म। क्योंकि बहुत सिंपल पिक्चर्स आती हैं। तो मैम हम्म माइंड को ब्रॉडन करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। एंड थीम्स आप जितना ज्यादा सोचेंगे, तो यही ट्रिक आजमाई थी मैम हम्म। मैंने फॉर फर्स्ट डे। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष। You can now download the SSB SureShot app from Google Play Store to access online courses related to SSB, personality development, and written exams like NDA, CDS, FCAT, and plenty of other preparation material. For a limited time period, you can apply the coupon code SureShot20 to get a flat 20% discount on all the courses. Hurry up and become a part of the SureShot family. So moving forward, see, I like to know about how did you prepare yourself for the psych test, because बहुत लोगों का ये myth है कि psych is something which is very like complicated, और बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आती है psych में. So being a fresher, how have you like prepared for your psych, and what other tricks have you used there in your SSB? Ma'am, for the psych, the we all know that there are four parts basically: the TAT, WAT, the Hmm. SRT, and DST. So basically for the TAT, I have practiced the same the pictures as lot, because अगर आप picture जैसे आप
प्रैक्टिस करोगे, अगर आप हेजी हम्म पिक्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए अंडरस्टूड है कि अगर क्लियर पिक्चर आएगी तो आप तो आसानी से बना दोगे, क्योंकि हेजी इज मोर डिफिकल्ट देन क्लियर. सो ट्रू आई हैव प्रैक्टिस द सेम थिंग. मींस मैं टीएटी के बराबर पिक्चर हर डेली प्रैक्टिस करता था. एक हम्म वीडियो लगाई. स्टार्टिंग में तो मैंने ये करा कि मैंने थीम्स बहुत सारी बनाई. एक महीने तक थीम्स बहुत सारी, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी थीम्स आ गई. बहुत सारा एक्शन आ गया कि मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या हो सकता है. और व्हाट हम बोलते हैं ना, जैसे व्हाट हैज हैपेंड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग, हम्म एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम. So हम्म these things which I have focused on, and I have got the themes and the other actions as well during my हम्म practice sessions. Every day मैं टीएटी हर रोज लगाता था 12, जिसमें कि एक ब्लैंक भी हम्म होती थी. और जो ब्लैंक होती थी वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से जरूर मैच करती थी. मतलब ये नहीं कि मैं ब्लैंक एक ही रट रहा हूँ, एक ही रट रहा हूँ. क्योंकि हम्म कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लैंक एक रट के जाते हो और वही हम्म स्टोरी एज अ पिक्चर आपको पूछ ली जाती है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ हम्म तो आप फंस जाते हो. तो यहीं पे दूसरी स्टोरी अगर आपने कोई बनाई होती है, क्योंकि ब्लैंक स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जो हर किसी को पता होता है, हर कोई याद करके ही जाता है, मोस्टली स्टूडेंट, यस मोस्टली कैंडिडेट. हम्म तो उसमें अगर आप अलग अलग अपनी लाइफ से रिलेट करके बनाओगे जो आपने पीआईक्यू में लिखा है, तो कहीं ना कहीं हम्म आपको हेल्प करेगी और कहीं ना कहीं आपकी वो पर्सनैलिटी में भी चीज दिखेगी. तो जिससे हम्म आपका एसएसबी रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा आगे हम्म को, क्योंकि वो चीज असेसर अपने आप ऑटोमेटिकली देख लेगा. तो हम्म टीएटी के लिए तो मैंने सेम चीज करी जो कि मैंने पीपीटी के लिए करी थी. और उसके बाद डब्ल्यूएटी की ओर बढ़ते हैं. तो डब्ल्यूएटी में 60 वर्ड्स आते हैं, हमको पता है. अब लेकिन 60 वर्ड्स में जो मैंने अटेम्प्ट करे थे इन माई एसएसबी, दे वर 58. बिकॉज जो उसमें दो थे उसकी मुझे मीनिंग्स नहीं आती थी, तो हम्म मैंने छोड़ दिए. गलत लिखने से अच्छा है कि छोड़ दो, उसमें कोई हम्म दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है. आप 55 भी करोगे तो डेट्स इनफ. वो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी तरह बता दे रहे हैं, क्योंकि 15 ओ एल क्यूज हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओ एल क्यूज हैं, अगर हम ओ एल क्यूज को ओ एल बीज में बदलेंगे, मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को ऑफिसर लाइक बिहेवियर में बदलेंगे, तो वो हमारे तीनों चीजों में दिखेगा, मनसा, कर्मणा और वाचना. तो हम्म ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अगर आपस में मैच कर गई तो हमारा एसएसबी रिकमेंडेशन ऑब्वियस डन है. और हर चीज हमारी सराउंडिंग में अगर हम अपनी लाइफ में देखें, तो पॉजिटिव हर चीज नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है नेगेटिव होती है. तो मैम कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि अ, आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी ही आ रही है. तो उसमें हम्म रॉन्ग क्या है? उसमें रॉन्ग तो कुछ नहीं है. अगर नेगेटिविटी आ रही है तो लिख दो, क्या हो गया? आप नेगेटिव ही तो सोच रहे हो. हर चीज मैम पॉजिटिव नहीं होती है आपकी कोई लाइफ में. एग्जांपल दे सकोगे उस मतलब जैसे मैम एनी फॉर वर्ड एग्जांपल आपका आपके सामने आ गया ब्लड. अब कोई सोच रहा है किसी के दिमाग में कार एक्सीडेंट आ रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी उसका कार एक्सीडेंट हुआ होगा, तो तभी वो उससे रिलेट कर पा रहा है. अब कार कार एक्सीडेंट से उभर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैम 15 सेकंड है. हमको ही पता है 15 सेकंड में बहुत कम टाइम होता है जिसमें हमें सेंटेंस भी फ्रेम करना होता है और सोच के लिखना भी हम्म पड़ता है. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि यार ये सेंटेंस अच्छा रहेगा, ये सेंटेंस अच्छा रहेगा, वो उसी में लग जाते हैं, तब तक का नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, तो वहां पे उनका वो हम्म सेंटेंस छूट जाता है, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको कवर करने में. तो तो द फर्स्ट थिंग विच आई डू, अगर हम इंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम केयरफुली सुने, तो जो साइक सर होते हैं, जो सर होते हैं वो हमें आके हम्म पहले ही बोलते हम्म हैं कि द फर्स्ट थॉट विच कम्स इन योर माइंड यू हैव टू राइट डाउन इट. मतलब जो हम्म पहला थॉट आ रहा है आप वो लिखो, सिंपल सी बात है. हम्म तभी वो आपके हम्म टीएटी से भी मैच करेगा, तभी वो हम्म आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखेगा. तो जो भी मेरे हम्म दिमाग में पहला थॉट आया, मैंने वही लिखा हर एक हम्म डब्ल्यू में. फॉर एग्जाम्पल मून आता है, तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं आया, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ रहे थे हम उन दिनों, तो चंद्रयान हम्म 3 भी चल रहा था. तो चंद्रयान हम्म का ध्यान आया, तो बच्चों ने लिख दिया चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून, which is a very basic हम्म sentence. हम्म And I have written that the moon signifies that darkness does not remains forever. This was my sentence for the moon. This हम्म the word was given as moon, and मतलब there are different different mind, different different mindset. और बच्चे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख के आए होते हैं. तो मैम ये तो आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे देख रहे हो, हम्म क्योंकि हर कोई हम्म बच्चा एकदम परफेक्ट सेंटेंस नहीं लिख सकता है. अभी हम बच्चे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं. तो इसके ऊपर मैम बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीजें हो सकती हैं डब्ल्यूएटी के ऊपर, क्योंकि हम अपने आप को असेसर बन के अगर लिखेंगे
तो हम कभी भी हम्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को बिल्कुल स्टूडेंट बन के, हम जो एसएसएन ने बोला है कि अगर आप जो आपके हम्म दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा है उसके ऊपर आप सेंटेंस लिखो, हम्म अगर हम वैसे ही हम्म करेंगे तो हम WAT बहुत इजी होता है, उसमें कुछ ज्यादा खेल करने का ऐसा होता नहीं है कि मतलब बहुत स्ट्रेस लेने बिल्कुल का। और मैम हम्म WAT मेरा ऐसे पूरा हुआ था। हम्म देन कमिंग टूवर्ड्स SRT, तो SRT में भी सेम 60 SRTs आती हैं सिचुएशंस। सो आई हैव अटेम्प्टेड 39 आउट ऑफ 60, बट द हम्म क्वालिटी ऑफ ऑल 39 वाज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने कोई भी सिचुएशन आई थी, ये नहीं कि मैंने उसको आधी लाइन में हम्म निपटा दिया, एक लाइन में निपटा दिया। अब हर कोई सिचुएशन ऐसी तो नहीं होती कि एक एक लाइन में निपट जाती है। कुछ बिल्कुल सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। अब आप क्या, अब हम्म फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन आती है, आपको एग्जामिनेशन देने के लिए अपने शहर से बाहर जाना है और आपके शहर में रायोट स्टार्ट हो गए हैं। देन हम्म यू डैश डैश, आप क्या करेंगे? तो ये हम्म ऑब्वियस है कि आप आधी लाइन या एक लाइन में इसको नहीं निपटा सकते। आप बोलेंगे हम्म मैं अपना एडमिट कार्ड निकालूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उसको एडमिट कार्ड, पुलिस को एडमिट कार्ड दिखाऊंगा, उनसे हम्म प्रॉपर परमिशन लूंगा। उसका परमिशन हम्म लेने के बाद, रिटर्न परमिशन लेके मैं अपना पेपर देने के लिए जाऊंगा, क्योंकि राइट्स के टाइम पे मोस्टली हम्म वी आर सीइंग दैट हम्म इंटरनेट सर्विसेज आर आल्सो क्लोज्ड इन द एरिया हम्म ऑफ राइट। सो these हम्म are the basic things that we have to keep in mind while writing the SRTs. We have to maintain हम्म the quality of SRT, not the quantity. So basically it's good to have, it's enough that we are writing 35 to 40 SRTs with good हम्म qualities. और कुछ हम्म कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि पूरे 60 SRTs करके आए हम्म थे। उसमें से एक बच्चा रिकमेंड भी है मेरे साथ का, जो 60 हम्म SRTs करके आया था और काफी अच्छी करी थी उसने SRTs। ऐसी बात नहीं है, वो हम्म तो आपकी स्पीड के ऊपर है, आप कितनी जल्दी कितनी तेज सोच पा रहे हम्म हैं। लेकिन मैम अगर आप वो 35 SRT भी कर रहे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी लिखी है, एक्शन बहुत अच्छा हम्म लिखा है, तो 35 ही आपके बारे में बहुत बता देती है। बिल्कुल। तो ये क्योंकि एक myth है, see there is a myth among the candidates that you know not not filling the entire this SRT, so 60 out of 60 is the reason of not getting recommend. So by यस your मैम। answer it is very clear that जैसे कि तुम खुद हो that not filling 60 SRT it is the quality over quantity. यस मैम। और Absolutely. मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे कम, यानी 32 34 SRTs करी थी, लेकिन वो फिर हम्म भी रिकमेंडेड हैं आज की डेट में। तो मैम हम्म दिस इज ओनली द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और हम ये देख absolutely. सकते हैं। और मैम हम्म अगर हम देखें TAT, हम्म WAT, SRT एंड हम्म SD, तो हम्म अगर आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट में, क्योंकि ये हम्म मैम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से टेस्ट डिजाइन होता है और आप इसको चैलेंज नहीं हम्म कर सकते हो, कितना भी आप पढ़ हम्म लो, कितना भी आप याद कर लो, true. वो नहीं हो पाएगा। तो मैम हम्म TAT में चौथी से पांचवी इमेज के बाद आपका दिमाग हो जाता है नील। आप चाह के भी नहीं बिल्कुल सोच सकते हो कि करेक्ट आप करोगे क्या। आपके हाथ हम्म खुद चल रहे होते हैं, आपका दिमाग खुद चल रहा होता है, हम्म आप खुद लिखते हो, जो आपके हम्म अंदर की ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वही बाहर आती है। तो मैम हम्म घर में तो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सोचते हैं यार थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया बैठे बैठे। हम्म लेकिन हम्म इन दी ओरिजिनल SSB वी आर नॉट गेटिंग एनी ब्रेक। वी हैव टू फिल ऑल हम्म दी questions, all the series, all the हम्म pictures, all the WATs, all the SRTs, हम्म and we have to see all the questions which we are getting in that in a हम्म single stretch of time. So it is very हम्म difficult there if we are not हम्म practicing there in our home. So ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि यार TAT छूट गई। एक बच्चा ऐसा था जिसकी एक TAT छूटी थी। तो मैम TAT तो हम्म सबसे पहली सीरीज है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि TAT में जो क्वालिटीज आपकी दिखेंगी, वही क्वालिटीज आपकी WAT से भी कंफर्म होनी चाहिए, वही हम्म क्वालिटीज आपकी SRT से भी कंफर्म होनी चाहिए, वही क्वालिटीज आपकी SD से भी कंफर्म होनी चाहिए। तो इसलिए TAT की लोग बोलते हैं, और बाकी सारे SSR भी बोलते हैं कि TAT इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दी साइकोलॉजिकल टेस्ट। वो हम्म इसीलिए है क्योंकि उसी से आपकी सारी पर्सनैलिटी निकल जाती है। क्योंकि मैम TAT में बिल्कुल लिखना ही इतना होता है कि आपके हाथ तो अलग हम्म थक रहे हैं और दिमाग भी अलग थक रहा है हम्म कि अब एक्शन क्या डालूं। ट्रू तो इसलिए मैम सारी वहां पे सारे बिहेवियर निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली। हम्म एंड फॉर SD आई वुड सजेस्ट दैट उसमें लिखा होता है फैमिली ओपिनियन, teacher's opinion, friends opinion, self हम्म opinion, and what kind of person or what do you want to achieve in your life. तो मैम ये जो फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर जो जो टीचर्स हैं, तो अगर आप इनसे खुद पूछ लो कि आपको हमारे अंदर क्या क्वालिटी दिखती है और क्या
आपको वीकनेस दिखती है हमारे अंदर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो मैम ये काफी इंपॉर्टेंट हो हम्म जाएगा और ये काफी हम्म आपको बेनिफिट करेगा। क्योंकि हम्म हाँ, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम्म मेरे अंदर ये वीकनेस है, और अगर ये वीकनेस कहीं हम्म ऑफिसर लाइक क्वालिटी में आ रही है और ये मेरे अंदर नहीं है, तो मैं हाँ हम्म उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको अपनी हम्म पर्सनैलिटी के अंदर इनहेंस कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे अंदर टाइम हम्म फ्रेम के अंदर ये मेरे ऊपर रहता है कि मैं वो ला हम्म सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ। तो नॉर्मल सी चीज है। अगर हम उनसे पूछेंगे हम्म तो एसडी बहुत आसान चीज है, एसडी को लोग बना के हम्म लिखते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, गूगल में देखते हैं एसडी और आ जाता है उसमें अलग अलग हम्म पैराग्राफ लिखे हुए, तो वही सेम छाप देते हैं और वही सेम रट के जाते हैं, क्योंकि एसडी सबको पता है पांच हम्म पैराग्राफ सेम ही आने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैम हम्म एसडी में अगर आप ऑनेस्ट ओपिनियन लोगे अपने फैमिली फ्रेंड्स और टीचर से, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं हम, कि हर दिन के हम्म बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हर हम्म दिन के बाद जो आपने टास्क कर रहे हैं उसको आप रात को बैठ के एक बार सोचो कि मैंने आज क्या टास्क करे, क्या गलती करी, क्या मैंने सही करा, क्या मैंने अचीव करा, क्या जो जो मैंने टारगेट सेट करे थे आज के लिए, क्या मैंने वो अचीव करे। तो ये आपको अपने बारे में एक बेटर और बेस्ट आइडिया दे देता है। तो सेल्फ ओपिनियन में आप इससे आप बहुत कुछ ज्यादा लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे हो, आप क्या वो टारगेट अचीव कर पा रहे हो, आप कहाँ पे थके, कहाँ पे आपने गलती करी, कहाँ पे आपने हम्म अच्छा करा। तो सेल्फ ओपिनियन इज ऑल अबाउट योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एंड दिस ऑल अबाउट साइक मैम। ओके आशुतोष, तो ऑल ओवर जो तुम्हारा साइट गया है, सो यू विल लाइक टू गिव एनी ट्रिक or tips to the members who are watching your video like right now? Any tips for the people there? Ma'am, there are not basically any tips or tricks according to me, because Hmm. there is only Hmm. practice and personality Yeah. enhancement which can only Hmm. help you and assist you throughout your SSB. Hmm. तो मैम आपको, Okay. आप इस चीज से भाग नहीं सकते हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी वैसी ही ले जाओगे जैसे आप पहले हो। अगर आप पहले वैसे ही हो, मतलब अगर आप पहले अच्छे हो, तब तो उसमें कोई बुराई Hmm. नहीं है। लेकिन Hmm. ऐसा कोई हर बंदा परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है, और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के उसके ऊपर काम करके अगर हम एसएसबी में जाते हैं, तो यही होती है मैम प्रिपरेशन, ना कि पेन पेपर पकड़ के लगे हैं ये हैं। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तीनों चीजों में दिखेगा, विच आई सेड अर्लियर, मनसा, कर्मणा एंड वाचना। तो मैम दी पर्सनैलिटी Hmm. एनहेंसमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Hmm. Okay, that's great, Ashutosh. Now, like moving toward the next test, which is GTO. As a whole, Abhi, like entirely, how was your experience and what all like did you face as a fresher? Because your group is completely separate than the others. Like you were in the freshers group. So what all helped you in your group and being, like under guidance actually help you or not? Okay, ma'am. Talking about my GTO days, so first of all, I would like to start with the group discussion, because Hmm. the first task which we had given to us is only the group discussion Hmm. basically. Hmm. So अभी Hmm. तक हम इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इंडिविजुअल Hmm. पार्टिसिपेशन अपने हाथ में होता है। अगर हम Hmm. फर्स्ट डे को हटा दें, फर्स्ट डे का जीडी हटा दें, तो उसके अलावा Hmm. अभी तक हम इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, कुछ कुछ बच्चों का सेकंड डे हो जाता है, बाकियों का थर्ड और Hmm. फोर्थ डे होता है। तो Hmm. उसमें तो हमारा Hmm. इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है। लेकिन जीटीओ एक Hmm. ऐसा Hmm. जीटीओ एक ऐसा टास्क है जिसमें हमें ग्रुप Hmm. में, और हमारी असलियत उसमें बाहर आती है बेसिकली, तभी Hmm. जीटीओ 2 दिन का रखा जाता है मेरे हिसाब Hmm. से, जहां तक मैंने देखा है। क्योंकि जीडी Hmm. एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा Hmm. दिमाग खराब करती है। क्योंकि बिल्कुल। नॉलेज नॉलेज सब गेन करके आए हैं, न्यूज़पेपर सबने Hmm. पढ़ा है, यूट्यूब वीडियो सबने देखी है, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सबने पढ़ा है, सबने Hmm. देखा है यूट्यूब में। Hmm. लेकिन मैम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको बोलना Hmm. कैसे है, उसको रखना कैसे है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आप कहीं से सीख नहीं सकते Hmm. हो। ये तो आपके पर्सनैलिटी के Hmm. ऊपर है बेसिकली। Hmm. तो Hmm. ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे हो, क्या आपके अंदर वो कामनेस है। तो जीडी यही Hmm. चीज टेस्ट करती है। तो जीडी में Okay. मैम बेसिकली हमारा जो ग्रुप बना था, 10-10-10 का बना था। ऑन द फर्स्ट डे देयर वर रिपोर्टिंग ऑफ 81 एंड अ टोटल ऑफ 30 कैंडिडेट्स वर स्क्रीन्ड इन ऑन द फर्स्ट डे। सो हमारा 10-10-10 का
3 ग्रुप बने थे और मेरा आफ्टर स्क्रीनिंग चेस नंबर 15 था, तो मैं सेकंड ग्रुप में था, चेस नंबर 11 टू चेस नंबर 20। एंड इन आवर ग्रुप देयर वर 2 रिपीटर्स, Hmm. प्रीवियसली रिपीटर्स। एंड Okay. उसके अलावा बाकी 8 जो थे वो फ्रेशर थे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हाँ, फ्रेशर का ग्रुप था। लेकिन जो हमारा फर्स्ट जीडी टॉपिक आया था, वो आया था Hmm. कि सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के टाइम पे जो प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड फेस कर रही है, वो क्या है Hmm. और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसमें एक था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक था वॉर्स, और एक था Hmm. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मींस ऑन द बेसिस ऑफ Hmm. रिलीजियंस एंड अदर एजेंडास। Hmm. तो Hmm. मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने वॉर का चूज करा, क्योंकि उसी टाइम पे Hmm. हाइप में बहुत था कि इसराइल हमास वॉर Hmm. और Hmm. रशिया यूक्रेन वॉर। तो Hmm. मोस्टली सारे बच्चों को उसके ऊपर नॉलेज थी। और नॉलेज ऐसी चीज है कि जो बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती, हमें पता है। तो बहुत सारे पॉइंट थे उसके ऊपर बोलने के लिए। लेकिन जब जिस समय जीडी शुरू होता है, उस समय मेरे ग्रुप में अचानक से एक, बोलते हैं ना, झोंका आता है, झोंका जैसा आया Hmm. और सब एक साथ बोलने लग गए। तो ग्रुप डिस्कशन में, Hmm. एंड एट द सेम मोमेंट, अगर आप सब बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज जागती है कि मतलब यार सब बोल रहे हैं, मैं चुप बैठूंगा तो कैसा लगेगा, ये कहीं ना कहीं होता है। क्योंकि मैं तो यहीं Hmm. फेल हो जाऊंगा, ये कहीं ना कहीं माइंड में आता है। लेकिन अगर सब चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्ला रहे हो, तो वो तो आप सबके जैसे बन गए ना, उसमें और आप में अंतर क्या है। लेकिन अगर सब बिल्कुल। चिल्ला रहे हैं और आप उनको रोक रहे हो कि भाई मत चिल्लाओ, एक एक करके बोलो आराम से, ग्रुप डिस्कशन है, नॉर्मली लो, इतना टेस्ट के उसमें क्यों ले रहे हो कि यार टेस्ट ही है, टेस्ट ही है, Hmm. टेस्ट ही है करके। Hmm. सबको नॉलेज फेंकनी है, पॉइंट किसी के कोई नहीं सुन रहा है, सबको अपने अपने पॉइंट फेंकने की है बस। ऐसा ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली कैंडिडेट यही करते हैं। तो जिसकी वजह से ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें आपका Hmm. नेचुरल बिहेवियर बाहर आता है। जो मैंने Hmm. बोला था कि Hmm. फर्स्ट डे में कि आपका अंदर से एंगर जो है वो बाहर आता है, गुस्सा बाहर निकलता है एकदम से, Hmm. कि कोई आपको बोलने नहीं दे रहा तो आप एकदम से चिल्ला के बोलोगे, उसको दबाने की Hmm. कोशिश करोगे। Hmm. तो वो Hmm. चीज मैम यही जीडी पे बाहर निकलती है। और 2 जीडी होते तो दो Hmm. जीडी में तो पूरा चले ही जाता है आदमी। तो Hmm. ये 2 जीडी ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए। और जीडी में अब नॉलेज तो सबको, ये तो जीडीओ सर को भी पता है और पॉइंट सर को ही दे ही देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो वो चेक करने के लिए लेक्चरेट भी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीडी इज फॉर बिहेवियरल टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हर Okay. कोई पार्टिसिपेट करता है और हर कोई Hmm. पॉइंट्स Hmm. देता Hmm. है, हर किसी के पास नॉलेज है। लेकिन हर कोई अच्छी तरह बात Hmm. नहीं करता है, क्योंकि गुस्सा बिल्कुल। निकलता ही निकलता है। तो मैम Hmm. सारे लोग पार्टिसिपेट करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, और कहीं ना कहीं Hmm. मैं चुप भी करा रहा था। और बीच में थोड़ा टाइम मिल रहा था, कहीं पे कुछ कुछ बच्चे स्टॉप होते तो मैं तब वहां पे अपने पॉइंट रख रहा था और बाकियों को सपोर्ट Hmm. करके बाकियों को भी चांस देने की कोशिश कर रहा था जो नहीं बोल रहे थे। Hmm. क्योंकि कहीं ना कहीं Hmm. कुछ कुछ बच्चे हमारे ग्रुप में ऐसे भी होते हैं जो Hmm. ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, तो उनको भी चांस देने की जरूरत है। तो Hmm. यहीं पे एक Hmm. ट्रू लीडर इमर्ज होता है कि आप कैसे अपने ग्रुप को Hmm. कोऑर्डिनेट कर रहे हो, क्या आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। Hmm. तो वो चीजें भी देखी जाती है। तो जो चीज मैंने नोटिस करी वो यही थी बेसिकली जीडी में। और सिमिलरली दूसरा जो ग्रुप डिस्कशन टॉपिक आया था, वो सर ने हमें खुद दिया था, Hmm. उसमें सिलेक्शन करने का तो कुछ होता नहीं है। Hmm. Hmm. तो Hmm. वो भी ऐसी आया था, तो उसमें भी सेम चीज हुई थी Hmm. और सेम ट्रिक मैंने अपनाई थी ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। बिल्कुल। तो Hmm. उसी में ग्रुप डिस्कशन में हमारा हो गया था। Make sure that you don't miss any of our free classes and exclusive new videos on SSB Show Short Plus. Subscribe now and hit the notification bell. Follow us on Instagram for more informative and motivational content, offers, and updates related to the armed forces. Visit our website for numerous online courses and study material. Call us on 725 930 7111 for queries and registrations. Okay, other than that, how have you performed physically? Like, do you think it is very important to be physically fit for GTO, or is it okay because physical fitness is something which is trainable? So, ऐसे बहुत लोगों में ऐसे, see, there's a myth that physical fitness is something where they are very, like lenient on. Is it true? मैम फिजिकल और मेंटल अगर आप दोनों फिट हो तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। Hmm. और फिजिकल फिटनेस हमें पता है कि अगर आप इंडियन आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो फिजिकल फिटनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
जो आपको हम्म प्राइमरीली देखनी चाहिए। मेंटल हम्म फिटनेस भी उतनी है, क्योंकि आप कल हम्म के दिन ऑफिसर बनोगे या हम्म किसी आपके अंडर जो जवान काम करेंगे, क्या हम्म आप उतना स्ट्रेस बियर कर सकते हो कि उनको आप देख पाओ बिना स्ट्रेस के, बिना हम्म स्ट्रेस उन पर पुट ऑन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हम्म कि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होना है। क्योंकि मैम हम्म बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो रिकमेंडेड तो हो जाते हैं, पर रिकमेंड होने के बाद इन दी एकेडमी दे आर नॉट फिजिकली फिट, हम्म तो वो छोड़ के आ जाते हैं। क्योंकि मैम ट्रू वहाँ पे रगड़ा बहुत हाई ट्रू होता है और हम्म फिजिकल फिटनेस बहुत एकदम से हाई। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस का ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जवाब दे जाएगी आपको, आप सह नहीं पाओगे उतना। तो आपको मैम फिजिकल फिटनेस बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि पूरी फिजिकल जान लगा देनी है, लेकिन इतना आपको बनाए रखना है कि हाँ, आप कम से कम आपके अंदर स्टेमिना हो, आपके अंदर एंड्योरेंस हो, आप अच्छा खासा दौड़ ले रहे हो मैम। हम्म कि आपको तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, आपको लंबा दौड़ना जरूरी हम्म है। जैसे बोलते हैं ना, हम्म घोड़े लंबा दौड़ते हैं, सेम हम्म चीज है यहाँ पे भी। तो मैम फिजिकल फिटनेस के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आपको बस इतना फिट रहना है कि आप अपने माइंड को अच्छी तरह अपने कंट्रोल में लेके बिल्कुल काम कर सको। और हम्म मेंटली फिट तो आप हो ही रहे हो, क्योंकि आप नॉलेज हम्म गेन कर रहे हो, आप बहुत सारी बिल्कुल अदर चीजें कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, हम्म क्योंकि एसएसबी हम्म आ रहे हैं तो पढ़ाई हर कोई करके आएगा। लेकिन उसी जो फेज होता है, वो फेज उसमें फिजिकली फिट हर कोई नहीं रह पाता है। क्योंकि सब सोचते हैं यार हम्म पढ़ाई कर लेते हैं, फिजिकली फिट तो बाद में भी हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत हम्म चीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकल बाहर कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर हम्म रहे हो, कुछ कुछ भी कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपके कहीं ना कहीं मेंटल फिटनेस पे भी बिल्कुल इफेक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, हम्म फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष नाउ okay how many IU have you done individual obstacles मैम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आई हैव डन अ टोटल नंबर ऑफ 11। okay so is there any candidate from your group जिसने बहुत ही कम करे हो या जिसने बहुत ही ज्यादा करे हो और रिकमेंड ना हुआ हो या फिर जिसने बहुत कम करा हो और गॉट रिकमेंड हाँ मैम, एक लड़का था जिसने टोटल नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल जो करे थे वो 9 करे थे, सबसे कम। क्योंकि 10 तो कर ही लेते हैं मोस्टली, और आसान भी हम्म होते हैं, इतना कोई कठिन नहीं है। तो हम्म 9 करे थे, लेकिन वो रिकमेंड हुआ था। और वहीं पे एक हम्म दूसरा बच्चा था जिसने, अगर हम टोटल बोले तो उसने 21 ऑब्स्टिकल्स करे थे, 21 ऑब्स्टिकल्स। okay that's a और huge number यस मैम, like 21 हम्म ऑब्स्टिकल्स, लेकिन वो दूसरे ग्रुप से था। अच्छा ओके 21 भी नहीं मैम, 21 तो मैं कम बोल रहा हूँ, उसने 30 करे थे। उसने 3 बार रिपीट करा था ओके पूरा एक मिनट में इंडिविजुअल। 10 नहीं obstacles that's उस something new यस मैम, तो 3 मिनट उसने क्या करा था, 30 बार टोटल ऑब्स्टिकल करे थे सारे। मतलब टोटल ओवरऑल में बोल रहा हूँ, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 30 करे हम्म थे। उसका क्या था कि टाइमिंग शायद उसकी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो जिसकी वजह से उसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिला था वहां पे। तो उसने 30 करे थे, लेकिन वो लास्ट में रिकमेंड नहीं हो पाया था। ये हमारे ग्रुप की बात है। ये मतलब हमारे बैच ओके की बात है। ग्रुप दूसरा था उस बच्चे का, ग्रुप नंबर हम्म थर्ड, ग्रुप नंबर हम्म थर्ड। और लेकिन वो ओके रिकमेंड नहीं हो पाया था। उसने टोटल नंबर ऑफ, ओके क्योंकि सब तो सोच रहे थे कि इसने टोटल ऑब्स्टिकल हम्म 30 कर लिए हैं, तो ये तो इसका हो ही जाएगा रिकमेंडेशन पक्का रिकमेंड है। हाँ पक्का है इसका लेकिन ओके मैम फाइनल जब रिजल्ट आया, तो सब शॉक हम्म थे कि ऐसा कैसे। लेकिन मैम वो तो मैम तीनों चीजें हैं ना जो ओवरऑल आपको ट्रू देख रहे हैं। तो खाली फिजिकल हम्म से तो नहीं होता, तो आपको मेंटली भी उतना होना चाहिए। ओके आशुतोष नाउ हाउ डिड योर इंटरव्यू गो लाइक कोई ऐसा नायाब सा क्वेश्चन या एनीथिंग समथिंग वेरी डिफरेंट देन अदर देन सीआईक्यू हाँ सीआईक्यू तो सबको पता है एंड एवरीबॉडी प्रिपेयर फॉर इट नाउ अदर देन सीआईक्यू इज देयर एनीथिंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक दैट यू वर आस्क्ड फॉर मैम फॉर द इंटरव्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज और पीआईक्यू फॉर्म। तो पीआईक्यू फॉर्म हम्म जब बच्चे भरते हैं, तो कुछ कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार हमें सर्टिफिकेट तो अटैच करने नहीं है, तो हम कुछ भी लिख हम्म देते हैं उसमें। तो वो क्या पता सर को हम्म पता लगे ना लगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अपनी हॉबीज कुछ और लिख दी, अपना स्कूल में हम्म पार्टिसिपेशन कुछ और लिख दिया, जो हमें जो हम्म लीडरशिप के इवेंट्स होते हैं उसमें कुछ और लिख दिया। फॉर एग्जांपल एनसीसी में सीनियर इंटर ऑफिसर लिख दिया, इंटर ऑफिसर लिख दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिया, स्कूल कैप्टन, स्कूल स्पोर्ट्स हम्म कैप्टन। तो वो पता नहीं लगेगा ऐसा सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बातों में पता लग ही जाता है, जो सीआईक्यू होते हैं हम्म उनमें पता लग ही जाता है। तो इंटरव्यू के लिए सबसे हम्म पहली चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि जब आप अपना पीआईक्यू आप लिख रहे हो,
तो उसकी एक मिनी इमेज अपने आंखों के सामने कैप्चर कर लो, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और आप अपने इंटरव्यू में जितना ऑनेस्ट रहोगे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्टी इज हम्म दी बेस्ट पॉलिसी। हम बचपन से ये थॉट पढ़ते हुए बिल्कुल। आ रहे हैं, और इससे बढ़िया थॉट मैम कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको कोई फंसा ही नहीं हम्म सकता है किसी भी क्वेश्चन में। जो आपने चीजें हम्म लिखी हैं उसके ऊपर अगर आप डीप नॉलेज गेन करके जा रहे हो, अगर आप वो चीज के लिए सीरियस हो, हम्म जो आपने हॉबीज लिखी हैं, जो आपने पार्टिसिपेशन हम्म अभी तक करे हैं, अगर आप उस चीज के लिए सीरियस हो, हम्म तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपसे जितने क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाएंगे आप इजीली आंसर कर दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म लेकिन CIQ कुछ हमें पता है कि सब नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल CIQ भी हम्म कहीं कभी कभार हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने PIQ में कुछ और लिखा है और हम्म हम यहाँ पे कुछ और बोल दे रहे हैं। तो इंटरव्यूअर को एक हम्म आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये झूठ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी पर्सनैलिटी में डाउट है। तो मैम वहां पे वो फंसाना शुरू करते हैं, फिर तुमने तो यहाँ पे ये लिखा है वो लिखा है, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो करके। तो कहीं ना कहीं उनको बातों में ही पता हम्म लग जाता है, वो आपसे इतने प्यार से ही बात करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मैम हम्म अगर हम बात करें कि CIQ के अलावा कोई अदर क्वेश्चन जिसमें मैं फंसा हम्म हूँ, तो एक क्वेश्चन क्योंकि मैंने अपनी हॉबी में लिखा था रनिंग, तो मैंने उनको बताया था कि मैं मैराथन रन करता हूँ फॉर माय एंड्योरेंस। तो उन्होंने बोला आप हम्म कितनी कितनी कितने किलोमीटर्स दौड़ लेते हैं, तो मैंने बोला सर आई हैव रन अ टोटल ऑफ 15 किलोमीटर्स एज ऑफ नाउ, हाइस्ट जो मैंने दौड़ा है। लेकिन हम्म जो मैंने टाइमिंग रिकॉर्ड करी है वो मैंने 10 किलोमीटर्स की करी है। तो सर बोलते हैं अच्छा ओके। कि अच्छा टाइमिंग बताओ कितनी है। तो फिर मैं बोलता हूँ हम्म सर 47 मिनट्स 30 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। तो उन्होंने बोला हम्म अच्छा ठीक हो गया, तो कैलकुलेट करो इसको और इसकी स्पीड बताओ इन किलोमीटर्स पर आवर। अब मैंने हम्म 47 मिनट 30 सेकेंड्स तो बोल दिया, लेकिन अब मैं हम्म उसको चेंज करके कैसे किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने उसका आंसर बहुत ही गलत दे दिया कि अगर मैं 10 किलोमीटर 1 घंटे से कम में भी दौड़ रहा हूँ, तो वहां पे एक तो प्रेशर की सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका दिमाग काम करना खुद ही बंद करता है, क्योंकि सामने ऑफ हम्म कोर्स सी बात है एक ऑफिसर बैठा है और जो ट्रू। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैम कहीं ना हम्म कहीं आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर अलग रहता है कि यार अब क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या हम्म मारेगा ट्रू। सामने बैठा हुआ इंटरव्यू। तो वहीं पे हम्म मैंने इस क्वेश्चन में गलती करी थी और इसमें मैं फंसा था। तो मैंने इसमें जो आंसर बोला था वो 6.5 किलोमीटर्स पर आवर बोल दिया था, जो कि मैंने हम्म थोड़ी देर बाद सोचा, तो मैं खुद इंटरव्यूअर सर के सामने बोलता हूँ है जस्ट लाइक आई वाज हम्म सरप्राइज्ड कि 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर वो बोलते हैं आप होश में हो, सही हो, यही होगा आंसर। तो मैंने बोला सर जस्ट अ मिनट, कैन यू प्लीज गिव मी वन मोर चांस। तो सर से हम्म मैंने चांस मांगी। तो उसके बाद मैंने कैलकुलेशन सही करके स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से निकाल लिया कामनेस के साथ। हम्म मैंने बोला अब सारी कामनेस इकट्ठा करो और यहाँ लगाओ। तो फिर उसके बाद हम्म मैंने इस चीज के ऊपर लगाई, तो इसी चीज के ऊपर उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे सेम चीज के ऊपर दो क्वेश्चन और पूछ दिए। कहीं पे उन्होंने हम्म टाइम चेंज करा, कहीं पे उन्होंने हम्म स्पीड डिस्टेंस हम्म चेंज करी, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इजीली उसको सॉल्व हम्म कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात ट्रू। नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो बहुत ही बेसिक होते हैं कि हमें पता है यार हम भाग रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड कितनी है ये कोई मेजर करता नहीं है। यूजुअली हम भाग रहे हैं कौन कर रहा है स्पीड मेजर, ऐसा वाला हिसाब होता है मैम बच्चों का सभी का। तो वो मैम कोई देखता नहीं है। तो ये ट्रू। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो वहाँ पूछ ली जाती हैं इंटरव्यू में, हम्म और सामने हम उसी में फंस जाते हैं। तो यही एक क्वेश्चन था जिसमें मैं फंसा था। बाकी ऑल हम्म क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड प्रॉपर्ली, उसमें कोई ओके। दिक्कत नहीं थी, विद ऑनेस्टी। हम्म हाउ लॉन्ग वाज योर इंटरव्यू? मैम 1 hours 5 minutes। 1 hour 5 minutes. Okay. Being a fresher, 1 hour 5 minutes is pretty a good time. Anyways, Ashutosh, now moving to the last stage, that is your conference and definitely recommendation of yours. How many minutes have you waited outside, and what was the discussion, or what question like did they ask you in your like conference round? Okay, ma'am. The chest number 14 before me was Mm, gone for the conference, and mm, after him, I waited outside for approximately 3 to 4 minutes, just three to mm, four minutes, and mm, then I've gone inside. My chest number was visible on the screen. Then I got inside for my conference, and the first question, which I got asked from the sir, from the president of the board, was mm, how was your stay, and tell mm, me
about your all three things which you have done till now, means interview, psych, and GTO, and also Hmm. tell me the ratings which you want to give in your opinion, and in all Hmm. the three techniques, GTO, psych, and Hmm. interview, out of 10, and also Hmm. give me the reasons why. तो मैम मैंने इसमें Hmm. बहुत ही सिंपल सा आंसर करा कि मैं Hmm. सर, स्टे वाज वेरी गुड, देयर वाज नो प्रॉब्लम। Hmm. उसके बाद सर ने पूछा कि अच्छा आप बताओ उसके बारे में, रेटिंग्स के बारे में, Hmm. जो मैंने आपसे पूछा। तो मैंने इंटरव्यू में अपने आप को 8 आउट ऑफ 10 रेट करा था, जीटीओ साइक में 7 आउट ऑफ 10 करा था। तो फिर मैंने उसके Hmm. रीजंस भी दिए कि सर मैंने इंटरव्यू में ऑनेस्टी के साथ आंसर दिए, मैं कहीं पे फंबल Hmm. नहीं करा, और मैं सर के साथ कॉन्फिडेंट था अपने आंसर में। तो इसलिए मैं इसमें Hmm. 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ। और जीटीओ साइक जो बाकी दो हैं, उसमें मैं Hmm. इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपनी जॉब करी है, और साइक में मैंने कोई भी Hmm. प्री कंसीव चीज़ नहीं लिखी है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसको Hmm. प्रॉपरली सुन के Hmm. चीज़ें करी हैं। तो आई थिंक मेरा साइक भी Hmm. अच्छा गया है। और उसके बाद जीटीओ के टाइम पे क्या हुआ था कि जीटीओ में मैंने बोला कि आई हैव cooperated well with my teammates, with my group mates, Hmm. and I have given them chance also for talking in the while in the group discussion, and also in the Hmm. group planning exercise, and vice versa, Hmm. and all the things. तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे ये सारे रीजंस दे रहे हो, तो देन व्हाई नॉट 10 आउट ऑफ 10। अब मैं 15 सेकंड तक मैंने बोला सर क्या पता क्वेश्चन चेंज कर दे, क्योंकि मुझे इसका आंसर Hmm. पता नहीं था। तो मैं सर की Hmm. आंखों में देखता हूँ, सर मुझे देखते हैं। 15 सेकंड हो गए थे, फिर सर हंसने लग गए थे Hmm. कि सर ने Hmm. ऐसे करा। तो मैं समझ गया अरे Hmm. आंसर भी देना है। तो फिर मुझे Hmm. एक लाइन याद आई जो कि मुझे कर्नल डीके रावल सर ने बोली थी कि Hmm. अ, उन्होंने सेम चीज पूछी थी कि आप अपने आप को कितना रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 10। तो मैंने वहां पे 10 आउट ऑफ 10 बोल दिया था। तो सर ने बोला यू आर नॉट गॉड, क्योंकि गॉड ही परफेक्ट हो सकता है। तो मैंने सेम Hmm. लाइन कॉन्फ्रेंस में भी बोली, सर आई थिंक 10 मीन्स परफेक्ट, एंड परफेक्ट इज फॉर गॉड, एंड आई डोंट थिंक दैट आई Hmm. एम गॉड, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन माई सेल्फ 10 आउट ऑफ 10। तो Hmm. सारा बोर्ड जो वहां पे बैठा था, सब सारे ऑफिसर्स हंसने लग गए एकदम से कि ये क्या बोला Hmm. इसने। वो सब और प्रेसिडेंट सर तो हैं बोलते हैं, व्हाट यू हैव सेड, Hmm. टेल मी अगेन, उन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि अच्छा देन व्हाई नॉट 9 आउट ऑफ 10। अब फिर Hmm. मैं 10 सेकंड तक रुका, मैंने बोला अब इसमें क्या बोलूं, Hmm. 10 में तो बोल दिया, अब 9 में क्या बोलूं। फिर मैंने 9 में उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे जस्ट बाद एनडीए गर्ल्स की एंट्री थी, Hmm. उसके कुछ टाइम Okay. बाद सीडीएस एंट्री थी। तो मुझे पता था कि हाँ Hmm. सीडीएस एंट्री आने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में वो आ गया उस टाइम पे। तो मैंने बोला सर एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक दैट आई एम नॉट सो मच मैच्योर्ड according to the CDS entry students, as they are graduated and they are matured very well. And in my mind, I have somewhere childish nature also. Hmm. So I think that 9 grade is not applicable for me as of now. So I think 8 grade is applicable. So I have given 8 out of 10. तो सर वॉज Hmm. सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सर ने बोला टेल मी सजेशंस, 2 सजेशंस अबाउट फूड एंड अकोमोडेशन। तो सर ने मुझे, मतलब एक होता है कि हाँ पूछ लिया जिसमें मना कर सकते हैं, लेकिन सर ने मुझे फोर्स करा था कि Hmm. आप बता दो, तो बताना ही Hmm. बताना है मतलब। तो फिर मुझे Hmm. समझ आया कि अब तो कुछ बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें आप अगर देखोगे तो दिखती नहीं है, क्योंकि एरिया Hmm. बहुत क्लीन होता है, बाहर आपको सब चीजें मिलती हैं, Hmm. ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम Hmm. दिखती नहीं है। लेकिन तो वहां पे मैंने उनको बताया था कि एक गीजर का बटन है जो बाथरूम के बाहर लगा है, Hmm. वो ओपन्ड है। तो वहां पे तारें निकलती हैं, और वो वाटरी एरिया है, तो किसी का भी पानी लग के हाथ गलती से पड़ गया तो करंट लग सकता है, वो Hmm. बहुत ही True. नॉर्मल सी चीज है। तो मैंने यही बोला था कि सर इसको अगर आप सही करा दे तो एक ही बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज बोली थी कि वहां पे डॉग्स घूमते थे, स्ट्रे डॉग्स, तो उनके उसमें बैक्टीरियाज वगैरह, मतलब वायरल जो होते हैं कीड़े, तो वो लगे थे। तो मैंने बोला सर अगर आप इनको वेटनरी में दिखा देंगे प्रॉपरली, इनका भी इलाज हो जाएगा, और ये भी अच्छा फील Hmm. करेंगे, और बच्चे भी अच्छे फील करेंगे, तो आपस में इनका भी कोऑर्डिनेशन बन जाएगा कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के साथ। तो मैंने ये बोला था, Hmm. तो सर वॉज सेटिस्फाइड देन। फिर उन्होंने बोला था थैंक Hmm. यू, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। Okay. Then how many of you got recommended from your batch and your course? So from ma'am, from 30 of us, we 12 got recommended. Okay, that's a good number.
And then how many freshers? Freshers, 11 were freshers. Okay, 11 were freshers, and one of Yes, them sir. was like previously recommended or a repeater? Repeater मैम. ओके, तो कोई recommended भी था तुम्हारे ग्रुप में? मतलब नहीं मैम, recommended नहीं था. out of 30 nobody was recommended. No मैम. Okay, that's good. Anyways, congratulations, Ashutosh. Thank you मैम. We hope that you get, merit in very soon and see you in uniform very soon and make your parents proud. Okay. Thank you मैम. Now, okay, before ending our session, any memories of your first SSB that you like to share? Anything funny or emotional? हाँ मैम, फनी तो काफी सारी चीजें हुई थी कि जैसे हम देखते हैं कि जो वेट वेट कैंटीन्स और कैफेटेरिया होते हैं, तो वहाँ पे हम जाते हैं नॉर्मली, तो हम अगर अपने होम टाउन में जाएंगे तो हमें दिखता है कि हाँ टेबल चेयर लगी हुई है, तो जाके कोई भी बैठ सकता है. तो मैं अपने एक मतलब मेरा दोस्त ही है, वो काफ़ी करीबी दोस्त है, तो उसके साथ में गया वेट कैंटीन में, और हमने कुछ समथिंग आई वी हैव ऑर्डर्ड देयर फॉर ईटिंग. और जनरली वी आर रोमिंग हियर एंड देयर आउटसाइड फ्रॉम वेट कैंटीन. तो हमने देखा कि वहाँ पे यार एक टेबल चेयर लगी है, वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, और वहाँ पे कोई बैठा भी नहीं था और ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे कैंडिडेट्स. तो बाकी बच्चे उधर अपना मजे कर रहे थे, 5-6 बच्चे थे उधर पे चेयर. हमने सोचा कि यार यहाँ चेयर कम है, तो इसलिए शायद बैठे ना हो. हम बोला चलो जाके बैठ जाते हैं, देखा जाएगा जो होगा. हम जाके वहां बैठ गए, और ऊपर शेड शेड लगा था. तो एक कैंडिडेट आता है, और एक कैंडिडेट आके हमें उठाता है. वो बोलता है, अरे तुम्हें पता नहीं है ये किसकी सीट है? मैंने बोला नहीं, किसकी सीट है बताओ. तो बोलता है ये यहाँ के कमांडेंट की सीट है. देन वी वर शॉक्ड. हमने बोला ये कमांडेंट की सीट है और कमांडेंट की सीट के ऊपर बैठे हैं. हम गलती से सर की सीट के ऊपर बैठ गए थे, और वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा था. वो सीसीटीवी ने हमें नोटिस भी करा होगा, लेकिन हम उठ गए. हमने बोला अब सर अगर हमें बुलाएंगे तो हम कुछ नहीं, अपोलोजाइज कर देंगे कि सर हमें नहीं पता था. सो ये एक सबसे ज्यादा फनी इंसिडेंट था वहां पे. अभी तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन वहां पे बहुत कुछ लगा था, क्योंकि कमांडेंट की सीट Yes, इज ऑफ yes, yes. कोर्स बड़ी बात होती है. तो वो हम कमांडेंट सर की सीट के ऊपर बैठ गए थे, तो इसलिए वहां पे थोड़ा हमें ऑकवर्ड जैसा शाइनेस भी लगी थी कि हम गलती से बैठ गए. तो Okay, मैम okay, यही फनी okay. इंसिडेंट था. Okay, okay. Thank you, Ashutosh, for being with us and giving your experience and sharing your experience. You can now get a free SSB course under the guidance of Major General Bhakuni at SSB Short Short Academy if you attend any of our written courses for NDA, CDS or FCAT. Attend 4 to 5 lectures daily and prepare with study material, mentor support, weekly feedback, mock tests and guidance by officers in our lush green 28-acre military campus. Call us now on 725 930 7111 for queries and registrations.